الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. زور سے بولا کرو، سنی مسلمان ہم لوگ ہیں الحمدللہ. بہت اچھے آپ حضرات کہ جنہوں نے آج کی یہ محفل ہم سب مل کر بھائیوں نے رچایا بسایا، امام علی مقام کی یاد میں اپنے پیسوں کو خرچ کر کے، اپنے وقت کو دے کر ذکر شہادت حسین میں آپ تشریف فرما ہوئے. الحمدللہ آج کی یہ 12 تاریخ ہو چکی ہے، 13ویں تاریخ لگ چکی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اور کوئی جشن نہ کر کے جشن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا ہے. ان کے اصالِ ثواب کے لیے میلاد نبی، جشن شہید اعظم کا جشن یعنی جلسہ رچایا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن جن بھائیوں نے جامع دل میں سخنے جتنا بھی ان کے نام پر آج تک جائز طریقے سے خرچ کیا ہے، پروردگار عالم ان پیسوں کو، آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر درود شریف پڑھیں. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو بھائی ہمارے دور ہیں، ذرا قریب آ جائیں، آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا. اگر آپ کو تکلیف زحمت نہ ہو تو سب سامنے آ جائیں. ذرا آپ سبحان اللہ جتنی تیز ہے نا، آپ کرسی چھوڑیے، ادھر آئیے بھائی. بیٹھ نہیں پاتے ہیں؟ چلیے اللہ سے دعا ہے کہ آپ اسے سن کے بیٹھے کہ بڑی کا آ جائے، اور یہ بیٹھنے لگے ہو سکتا ہے بیماری ہو. لہذا آپ حضرات جیسی آواز نکالتے تھے جشن حسین میں ویسی آواز نکالے گا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اور کیوں نہ نکالیں، یہ دل بھی حسینی ہے. امام صاحب نے بہت اچھا پڑھا سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں اپنی چھوٹی پھوٹی آواز میں 2-3 شعر آپ کو سناؤں تاکہ آپ بیداری کا ثبوت دے دیں، کیونکہ بھائی آپ کی تو بہترین آپ کے امام کی آواز ہے الحمدللہ. یہ دل بھی حسینی ہے. کہہ دو مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. سبحان اللہ. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ
سبحان اللہ. اب زور سے کہہ دو یا حسین. یا حسین. زور سے بولو یا حسین. یا حسین. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, پہچان حسینی ہے. ہمارے ساتھ بھی بولے آپ تاکہ امام علی مقام اپنے قبر مقدس میں آرام فرما ہے, اور یہ کہیں کہ چھوٹا سا گاؤں موسے پور کا, اور چھوٹے گاؤں میں آج بھی ہمارے نام لیوا حسین حسین کا نام دے رہے ہیں. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان حسینی ہے. زور سے بولو حسینی ہے. یہ جان بھی اور دولت سے خریدے دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو, دولت سے خریدو گے دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو, ہر ایک حسینی کا, ہر ایک حسینی کا, ہر ایمان حسینی ہے. جزاک اللہ. ہر ایک حسینی کا, ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے. زور سے ہاتھ تک آواز ہے. ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے. بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہو گے حسین کا دل خوش ہوگا, اس لیے کہ جب حسین حسین کہو گے تو اللہ حسین حسین کہو گے ان کے نانا خوش ہوں گے. آپ مدینہ شریف میں آرام فرما ہوں گے, وہ مچل کے کہیں گے ہمارے نواسوں کا نام لیوا آج بھی موجود ہے, مارنے والا کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے, صبح قیامت تک مردہ رہے گا, اور حسین تیرا نام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے, انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا. یہ حسین کا دل, یہ فاطمہ کے لال ہیں, انہوں نے کرب و فنا میں اپنے آپ کو دے دیا اور دے کے کہا کہ دیکھو فاطمہ بھی کے لال نے, دیکھو فاطمہ بھی کے لال نے, جو کہا وہ کر کے دکھا دیا, دیکھو فاطمہ بھی کے لال نے, جو کہا وہ کر کے دکھا دیا, آیا وقت دین رسول پر, آیا وقت دین رسول پر, تو لہو کا دریا بہا دیا, آیا وقت دین رسول پر. میرا حسین پورے مہینہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین اعظم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, ظلم و ستم آپ پر برسائے گئے, لیکن آپ نے ہر ظلم پر اللہ کا شکر ادا کیا, بے شک. ان کا شکر بجا لائے کہ پروردگارا تیرا احسان ہے. اس لیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کل کا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا نواز
नवासा करबला में शहीद हो जाएगा। और मेरे लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हुसैन को दुनिया का फूल कहा है। मेरे आका ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन को फूल कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे को एक फूल कहा है, जन्नत के जवानों का सरदार भी कहा है और जन्नत का फूल भी कहा है। और आपने कहा, मेरे रसूल ने फरमाया, ओ लोगों, मेरा रसूल दुनिया का फूल है। मैंने कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ये बात समझ में नहीं आती। आपने अपने रसूल को दुनिया का फूल कहा है, तो दुनिया के फूल का मामला ये होता है कि सुबह निकलता है और शाम को मुरझा जाया करता है। तो या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे को, आपने हुसैन आजम को फूल कहा है दुनिया का, तो फूल की तासीर ये होती है कि सुबह निकलता है, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये आप पे कैसे फूल है, ये आप पे कैसे फूल है? फूल का मामला तो ये होता है, सुबह निकलता है, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप इनको फूल कह रहे हैं, तो ये फूल कैसे हैं? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि वालों को, ये हुसैन मेरे ऐसे फूल है कि जो कभी मुरझाएंगे नहीं। बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर फूल वो कैसे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, एक वक्त आएगा, मेरा हुसैन करबला में होगा, नन्हा मासूम निस्गर कटता होगा, उसके बाजू पर, उसके हलकों पर तीर पड़ो आवाज की गई है, तीर प्रवस्त होता होगा, हुसैन देखता होगा, लेकिन मेरा हुसैन मुरझाएगा नहीं। अब्बास के बाजू कटता देखेगा, लेकिन मेरा हुसैन मुरझाएगा नहीं। और हजरत अकबर का जवान अली अकबर को मैदान करबला में वो लुटाता होगा, लेकिन हुसैन मुस्कुराएगा, लेकिन वो मुस्कुराएगा, कभी मुरझाएगा नहीं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरा वो फूल है कि मैदान करबला में कटता हुआ देखेगा, लेकिन कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसा मेरा फूल है। इसीलिए किसी ने कहा मोहम्मद मुस्तफा की बात के कुछ फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं। मुर्दे के बाद दिगरे सब ने मैदान करबला में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, मोहब्बत इसे कहते हैं। मोहब्बत का मामला ये है कि देखो, मोहब्बत ही तो थी। मोहब्बत में ऐसा होता है कि जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में अपने आप को कटा चुके, अपने ताकत जानिसार सारे के सारे लोगों ने अल्लाह की राह में अपने आप को दे दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को देखो, और कैसा इश्क था। आज हमारा इश्क ये है, आज हमारी मोहब्बत ये है, आज हमारा जज्बा ये है कि हम थोड़े से ही इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आओ मेरे दोस्तों, देखो, मुझे बिन अब्दुल्ला कलमी है, 18 साल की उभरती हुई जवानी है और आपकी शादी के 17 दिन हुए थे। ऐसी मोहब्बत हो मेरे दोस्तों, ऐसी मोहब्बत हो। देखो, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पे कोई वक्त आया था, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को राहे मौला में कुर्बान करने के लिए उनकी माँ गई और जाने के बाद कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, मेरी तुम अकलौती औलाद हो, मेरी अकलौती बेटे हो, मेरी अकलौती औलाद हो, ऐसा करो ना, आप दीन मुस्तफा के खातिर आमना के लाल के नवासे को बड़े वक्त आ गया है, क्या तुम अपनी जान को राहे मौला में कुर्बान कर सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी अम्मी जान, लेकिन याद रखो, मेरी शादी के 17 दिन हुए हैं, 17 दिन शादी के हुए हैं, अभी दुल्हन की मेहंदी नहीं फूटी है, अब उसका हाल क्या होगा? उन्होंने फरमाया, ऐसा करो, आज मैदान करबला में चले जाओ, मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अपनी जान फिदा कर दो। जब मैं समझूंगी कि तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और देखो, आज का माहौल देखो, कल की वो औलाद
बेटी कहती है वो मेरी बेटी ऐसा करो तुम उस रास्ते में मत जाना, वहाँ मेरी बदनामी होगी। तो वो लड़की हमारी माँ बहन उसी रास्ते पे जाना बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन ओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ देखो, ऐ हुसैन के मानने वालों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी दियालो, देखो वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले थे, इमाम हुसैन के मानने वाली थी। उन्होंने कहा मेरे लाडले, मेरे बेटे, ऐसा करो कि आप आमिना के नाम से वक्त आ गया है, आमिना के नाम से वक्त आ पड़ा है, ऐसा करो कि जाओ अपनी गर्दन को राहे मौला में पेश करो। एक वो औलाद थे कि जिन्होंने गर्दन कटाने के लिए अपने आप को पेश कर दिया, और कल की जो माएँ थी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, और कल की जो माएँ थी उन्होंने अपने बेटे को भेजा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, देखो आज हमारी माएँ अपने बेटों से नमाज के लिए कहें तो बेटा नमाज पढ़ने से रूबरदारी करता है, लेकिन कल जब हमारे इमाम पे वक्त आया था, नाना के दीन को बचाने का नंबर आया था, अकलौती औलाद है, कहा मेरे लाडले, मेरे प्यारे, आज हुसैन उनके नाना के दीन पर आज चाहे हुसैन के नाम पर कुर्बान होना है। उन्होंने कहा मेरी माँ, मैं जान दिल से राजी हूँ, लेकिन अभी 17 दिन शादी के हुए उस शहजादी का हाल क्या होगा जिसको दुल्हन बना के तो अपने घर लाई थी। उन्होंने फरमाया कि मेरे बेटे मेरी बात को मान ले, और मेरी बात मान, क्योंकि मेरे दूध का हक जब ही अदा होगा जब तू जाएगा मैदान करबला में अपनी जान को पेश करेगा। क्या तू राजी है? आज हमारी माएँ, मेरी बहनें अपनी माँ की बात मानने के लिए अदना तैयार नहीं होती। बाप कहता है कि इधर जाओ तो बेटा उधर जाता है, माँ इधर कहती है तो उधर माँ बेटी नहीं जाती। लेकिन आज देखो हुसैन के मानने वालों, हुसैन की शहीदी, उनकी मुहिम, आशिकाने हुसैन, वक्त आया तो कहती है मेरे लाल वह ऐसा करो, जाओ मैदान करबला में अपनी गर्दन को कटाओ। उन्होंने कहा मेरी माँ, मैं अपनी बीवी से इजाजत ले लूं, अगर वो इजाजत दे तो मैं मैदान करबला में जाऊं, अपने गर्दन को कटाऊं। कहा माँ ने कहा मेरे लाल, मेरे दिल के सहारे, मेरे आंखों की पुतली, ऐसा करो। और से नाकसुलअकल होती है, अगर उसने एक आंसू बहा दिया, अगर वो रोती तो नई दुल्हन है मेरे लाल, तुम रुक जाओगे, वहां जाने के लिए तुम तैयार नहीं होगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा मेरी माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे जाने दो, इजाजत देगी मेरी बीवी तब भी मैं जाऊँ, और ना इजाजत देगी तब भी मैं मैदान करबला में चला जाऊँ। लेकिन वाह रे, जब वो चले तो माँ ने आंखों से अश्क बरसाए और रोटी रो के कहा मेरे लाल, मेरे दूध की लाज रखना, मेरे बेटे मेरी लाज रखना, जा तो रहे हो, इजाजत तो है, कहीं बीवी के चक्कर में न पड़ जाना। उन्होंने कहा नहीं, आप जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं ये मेरी शरीके हयात, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी छुपी नहीं है, शादी के अय्याम पुराने नहीं हुए, लेकिन मेरी अहलिया ये बताओ, आज मैं तुमसे एक इजाजतनामा लेने के लिए आया हूँ। कहा बोलो। कहा आज फातिमा के लाल पर दीने
मुस्तफ़ा के लिए आज मैदान करबला में आज इस्लाम के दीन को बुलंद करने के लिए आज खून की जरूरत है। मेरी माँ कहती है मैं जाऊं और मैं भी हुसैन से पहले अपनी गर्दन को कटाऊं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इतना कहना था। बीवी की आंखों में आंसू आए, भगारी आवाज में कहा मेरे मेरे शौहर, मुझे मालूम है कि मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, लेकिन वो मेरी माँ बहनों देखो, इस्लाम की शहजादी इन्हें कहते हैं, उनको मालूम था कि मेरा शौहर मैदान करबला में जाएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा। उन्हें मालूम था कि मैदान करबला में जाएगा, वापस नहीं आएगा। उन्होंने आंखों में आंसू भर लाए और भर के कहा मेरे शौहर, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इसलिए अपना सुहाग मिटना बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने आप को लुटना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मुस्तफा पर आज आ जाए ये मुझे गवारा नहीं हो सकता है। वो मेरे शौहर नामदार जाओ, मैं इजाजत देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, जाओ, जब जन्नत में जाना तो मुझसे पहले जन्नत में जाना न जाना, जब जाना जन्नत में तो मुझे साथ में ले जाना, और आप मुझसे पहले जन्नत में न जाना। और ये वादा मैं आपसे नहीं, इमाम हुसैन के सामने लेना चाहता, इमाम हुसैन के रूबरू ये वादा मुआहदा करना चाह रही हूँ, जब तुम राजी हो। उन्होंने कहा हाँ, मैं सिर्फ दिल से राजी हूँ, चलो मैं उनके साथ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो औरत जिसे 17 दिन शादी के हुए हो, वो चली, और चलने के बाद सास के पास आई, उनको सलाम किया, और सलाम पेश करने के बाद वो चले वहां से। मैदान कारज़ार में इमाम पाक के सामने बूढ़ी औरत गई, उनकी बीवी गई, और वहीद बिन अब्दुल्ला कभी गए, और जाने के बाद खड़े हैं मैदान कारज़ार के एक किनारे। इमाम पाक की निगाह पड़ी, इमाम पाक ने देखा, कहो माई बूढ़ी, तुम कैसे आई हो, तुम्हारा आना कैसे हुआ है, जरा यहाँ तो आओ। जब सामने गई, हाथ बांध के अर्ज करती हैं, वो नवासे रसूल आका हुसैन, मैं आई इसलिए हूँ कि मेरा शौहर इस्लाम के लिए जंग में गया था, वही शहीद हो गया था। मेरे पास कोई सलीका नहीं, कोई पूरी नहीं, कोई दूसरी औलाद नहीं। इब्ने अली एक अकलौती औलाद है। मैं चाहता हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरे आका हुसैन आपके कदमों पर अपने बेटे को कुर्बान कर दूं और अपने दिल को खुशबुई हासिल करूं। तो जानकर मेरे प्यारे अजीजों, आका हुसैन ने कहा, ये बूढ़ी माई ये बता कि वो लड़की कौन सी है। फरमाया कि ये इनकी दुल्हन है, 17 दिन हुए मैंने शादी किया, और ये इसलिए मैदान कारज़ार में आई है कि आपके सामने इनके शौहर इजाजत दें कि इनसे पहले ये जन्नत नहीं जाएंगे। वहीं पर फौरन आका हुसैन के सामने चीख कर बोल पड़े महबूबुल्ला, आका हुसैन आपके रूबरू मैं वादा करता हूँ कि जन्नत से पहले नहीं जाऊंगा, इसको साथ में जन्नत देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वादा हो गया। मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी कि जाओ माई, अपने बेटे को भेजो। दूल्हा बनाया और दूल्हा बना के पगड़ी बांधा। पगड़ी बांधने के बाद तलवार हाथ में सधाई, और तलवार को देने के बाद माँ की तरफ देखा, घोड़े पे सवार
कहा कि माँ मैं जाने कर बड़ा जाऊं। माँ ने कहा जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हारा मक्तल देखने के लिए यहीं पे खड़ी हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे दोस्तों, वो माँ का दिल देखो, कैसा दिल होगा जिसने अपनी औलाद को अपने सामने मरने के लिए भेजा होगा। आज के माहौल देखो कि अगर बाप कहता है कि बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाओ, तो बेटा नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन वो माँ, उन माँ पे हमारी जान कुर्बान हो, उस बेटी पे जान कुर्बान हो, उस माँ का दिल क्या कह रहा होगा कि जिसका बेटा अगर आज हमारे बेटे को हमारे सामने कोई एक थप्पड़ मारे तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन बाहर शर्म शहीद आजम के मानने वाली और एक हम मानने वाले हैं, आस मानने वाली को देखो, सलाम मोहब्बत का अर्ज किया और कहा कि जाओ मेरे लाल। फिर भेज दिया मैदान कारजार में, अपने बेटे को मैदान कारजार में भेजा। अब बेटा मैदान कारजार में इस्लाम के लिए तलवार चला रहा है, गाजर मूलियों की तरह यजीदियों को धिन्नार करता चला जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, वो मारता चला जा रहा है, इधर से मारा उधर तलवारें चली और गाजर मूलियों की तरह सर तल से जुदा हो रहे थे। एक आवाज आई, आपने जब पूरा मैदान साफ कर दिया, उसके बाद आपके प्यास लगी और प्यास जब लगी तो आपने अपने एक घोड़े को एड़ लगाई और अपने माँ के करीब ले गए। कहा माँ क्या तुम मुझसे राजी हो? कहा कि बेटा मैं तुमसे उस वक्त राजी होंगी जब तुम अपने आप को आका हुसैन के लिए कुर्बान कर दोगे। एक एक कतरा तुम्हारा जब शहीद हो जाएगा तो जब शहादत के जान को पियोगे मेरी रूह को ताजगी मिल जाएगी, तुम्हारा पाप खुश होगा। आका हुसैन यही बात कर रहे थे। कहा माई अब प्यास बहुत लगी है, मैंने अपनी पूरी ताकत सर्व कर दी है। इतने में यजीदियों ने कहा एक नौजवान मैदान में आया है, इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, इसका मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ। तैयार थे उधर आवाज आई, हर दिन हमारे दिन है कोई मारने वाला, है कोई मेरे साथ तलवार चलाने वाला। इतना आवाज आई, आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई, फिर वापस गए मैदान करबला में लड़े। लड़ते लड़ते आप जमीन में गिरे, आप शहादत के जान को नोश कर लिया। आपने अपनी कुर्बानी राह मौला में पेश कर दी और राह मौला में आपको पेश करके जन्नत को सिहारे और वो जैसे ही आपका सर कटा झोली में आया, माँ ने फौरन अपनी गोदी में दिया, बीबी बही फौरन अपने आंचल में दिया और लेने के बाद गद्दे गुबार साफ करके चाह रही थी कि प्यारी मोहब्बत से उल्फत से अपने शोहर के चेहरे को बोसा दे दूं। सर नीचे झुका था, रूह कब से अंसुरी से बीवी की निकल जाती है। गोया की वो माता जो इमाम हुसैन के रूबरू हुआ था वो पूरा होते रहा। दोनों के दोनों जन्नत को चले गए, जन्नत को सिखा। और मेरे प्यारे अजीजों, मेरे दोस्तों,